Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I'm Muhammad Ishan Yakub. Today we will talk about vector addition, and in this lecture we will discuss about how we can add two vectors by different methods, two vectors, more than two vectors. So आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम वेक्टर एडिशन जो है वो कर सकते हैं और इसके लिए हम किस लिहाज से जो है वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, उनके लिए कितने पॉसिबल मेथड्स हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट ड्यू टू द यू कैन से हैवी मैनी स्लाइड्स तो हम इनको ओवरकम नहीं कर सके। तो आज जो है हम इसको बाय पार्ट स्टडी कर रहे हैं। सो वेक्टर एडिशन जो है हमारे कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स PHY 321 BS ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स सेमेस्टर फर्स्ट मॉर्निंग के लिए है। In the previous lecture, we have discussed about the difference between the scalar physical quantities and vector physical quantities and their types of the vectors. Especially, we have discussed the type with respect to orientation, path, action, reaction, and all these things. In this lecture, we are going to study the vector addition, and especially we are going to focus on the two types of the vector addition. In the first type, the two-dimensional vector addition by geometrical method explain किया जाएगा, and in the second type, we will discuss about the two-dimensional vector addition by analytical method. In the last lecture, we also discussed about geometrical method based upon the geometrical shapes and their laws. As you can see, we have particularly triangular law, polygon law. So, in these triangular shapes, we have particular way out to compute the other side or unknown side while the other sides are going given us. सो इस हवाले से अगर आपके पास ट्रायंगुलर लॉ लगाया जाता है, पॉलीगॉन लगाया जाता है, पैरेललोग्राम लगाया जाता है, तो आपको याद होगा हमने इसके अंदर शेप्स के मुताबिक एडिशन की थी। एंड द सेकंड वन जो है मेथड है दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड जो है इट्स बेस्ड ऑन दी सम अदर न्यूमेरिकल अलजेब्रा और ज्योमेट्रिकल concept. So after that, we will discuss about how we can resolve the vectors in two dimension. तो हम किस तरह से वेक्टर को है वो टू डिमेंशन के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। So let's start with that. Vector addition based upon geometrical method. In the previous lecture, we have discussed about a vector है, we have b vector, और अगर हम a और b का सम करना चाहते हैं तो वो किस बुनियाद पे होगा? It's based upon the, you can say it's based upon the vector addition rule, and that the fundamental rule to add a vector to other vector is called the head to tail rule. याद रखिएगा, सबसे फंडामेंटल लॉ जो है वो हेड टू टेल रूल होता है। इसके अंदर हमने फर्स्ट वेक्टर का टेल लेना होता है और सेकंड वेक्टर के हेड तक पहुंचाना होता है। सो एज यू कैन सी हियर, आई हैव ए वेक्टर। मैंने इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ तक ट्रांसलेट कर लिया, और सिमिलरली ऐसे ही पैरेलल में मैंने बी को उठाया है और यहाँ तक ट्रांसलेट कर दिया है। सो ए और बी दो वेक्टर्स हैं। ए इस तरह से बी के साथ कनेक्ट है कि ए का हेड है और बी की क्या है जी, टेल है। तो दे आर कनेक्टेड बाय दिस वे। अगर ऐसा है तो आप एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं दैट विल इनिशिएट फ्रॉम द टेल ऑफ ए and ends upon the head of B. So such type of the vector addition is called head to tail rule. So in this way, the C vector just starts from head tail of A and ends on the head of B. So the C vector represents the resultant effects of A and B. So as you know that this is also known as triangle shape. So that is why geometrically you can say this law is based upon the triangular law. In this law, the answers or resultants will be solved according to the triangular law. So here is C is equal to A plus B. So that is why you can say the resultant will be equal to the A plus B. In the main focus, you can understand that we didn't do anything special. Actually, we pursue the same thing here. We just add two vectors with respect to the and compute the C total effects of the two vectors. As you have a displacement from Egypt to Yemen, Yemen to Iran. So the resultant is, if someone want to displace himself
from Egypt to Iran, then the total displacement will be this C vector. Similarly, we have parallelogram, and in this parallelogram, we have a geometry for the scheme of study. Here we have two pulleys. The rope is moving throughout these two pulleys, and the mass which is acting upon the gravity. So it acting the force here, वो जो है force act करती है इन दोनों के दरमियान, तो उस वजह से द नॉर्मल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो W है, वेट है, और उसी के बराबर जो है आपके पास टेंशन जो है वो ए और बी के लॉग प्रोड्यूस ही हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है। तो हाउ टेंशन जो है वो भी एक फोर्स की टाइप होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड वी वांट टू कंप्यूट दैट व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बॉडी दैट इज एक्टिंग अपॉन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उस हवाले से आप सी निकाल सकते हैं। सो आप सी को इस तरह से निकाल सकते हैं कि बोथ आर बिहेविंग एज, अगर जितनी ये डाउनवर्ड है तो उतना वो नॉर्मल होगा। उस हवाले से आपके पास जो है ए इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपने इसको जस्ट रेप्लिकेट करके एक ट्रायंगुलर लॉग देने की कोशिश करनी है, जो कि बेसली तौर पे दो ट्रायंगल्स पे मुश्तमिल है, इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम कह रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास ये क्या होगा, एक सिंपल ट्रायंगल के साथ भी ये सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंडली, the important thing is that here we also use again the head to tail rule. Here is the first vector, and at the head of the first vector we have the tail of b vector, and the resultant is starting from the tail of A vector and ends upon the head of B vector. So A plus B is equal to C is head to tail rule here. Similarly, we have the situation for the polygon. In the previous lecture, we also discussed about this slide also. In this way, we have A vector, B vector, C vector, D vector, and as you can see here, here is actually more than two vectors. When you have more than two vectors, then as you should notice that आपको ये देखेंगे, नोटिस करेंगे कि A वेक्टर जो है के हेड से बी वेक्टर स्टार्ट होता है, और बी के हेड से सी वेक्टर, और सी के हेड से डी वेक्टर है। तो इन सब में हेड टू टेल रूल की बेसिक कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। वी जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ ए वेक्टर एंड एंड्स अपॉन द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो हमने भी इसी हवाले से इसके रिजल्टेंट को कंप्यूट कर लिया है। सो वी कैन सी दैट एडिशन के हवाले से अगर वेक्टर्स में देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल मेथड के ज़रिए से भी ये बात साबित की जा सकती है कि जो एडिशन है वेक्टर्स की वो कम्यूटेटिव होती है। यू कैन सी है ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी है। तो ए का पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है, तो पहले का हेड होना चाहिए, दूसरे की टेल होनी चाहिए, तो ये रिजल्टेंट जो है वो सी के बराबर है। सो यू कैन से सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये बी है और ये ए है। नाउ दिस बी इज बेसिकली बिहेविंग एज अ फर्स्ट वेक्टर and a is behaving as a second vector, so b plus a is equal to c. So it is the same answer that we have achieved for this way. So addition is called commutative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी आपके पास होल्ड करती है। आप यू कैन सी हेयर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर, जब ऐड किया जाता है तो ए प्लस बी के बराबर आता है। इन द सेम वे आप जो है जब इनको ए प्लस बी को सी के अंदर ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल रिजल्टेंट वेक्टर डी आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एडिशन दो दफ़ा की है। पहले इन दोनों को ऐड किया है, फिर जो आंसर आया है ए प्लस बी का वो उसको सी के अंदर ऐड करेंगे तो डी डेवलप हो जाता है। इन द सेम वे वी हैव चांस, वी कैन ऐड बी एंड सी फर्स्ट, आफ्टर दैट जो आंसर आता है उसको ए के साथ ऐड करें तो डी जो है वो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो उस हवाले से हमारे पास जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो जाती है। After that, we have subtraction. In the last lecture, we also discussed about the subtraction. So a plus b and a plus b जो है आपके पास आमतौर पे पहला वेक्टर का हेड होता है, b से वेक्टर का टेल होती है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो a प्लस बी होता है। अगर आप इस b की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो वी हैव द a माइनस बी। तो आप देख सकते हैं ये a वैसे का वैसे ही है, स्लाइड के ऊपर भी हमने
बी इस साइड पे लेने की बजाय वी गेट इट फ्रॉम द डाउनवर्ड रिवर्स डायरेक्शन, तो इट बिकम्स माइनस बी। तो उस हवाले से वी हैव ए माइनस बी हेयर सेंस। सो इस हवाले से हमारे पास जो है ये सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम वेक्टर ए इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ द वेक्टर बी। सो उस हवाले से हमारे पास हो गया जी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। सो वेक्टर एडिशन जो है वो आपके पास एनालिटिकली भी की जा सकती है, और लास्ट टाइम भी जो है वो ज़्यादातर लोगों को मसला था इस हवाले से भी देखने के लिए कि हम जो है वो किस तरह से कर सकते हैं एनालिटिकली मेथड के ज़रिए से। तो लेट्स स्टार्ट इन अ वेरी सिंपल वे। हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि आपके पास एक सेकंड जी। हमने लास्ट टाइम बात की थी हमारे पास जो है वो एक पी वेक्टर है और एक आपके पास क्यू वेक्टर है, और ये पी और क्यू के दरमियान जो एंगल है इट्स बेसिकली बिहेविंग एज अ थीटा, और आपने इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, वो एक सिंपल मेथड है। इट इज़ कॉल्ड द ट्रायंगुलर मेथड। हम उससे, या यू कैन से एनालिटिकल मेथड, उससे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रायंगल। तो हमारे पास अगर देखा जाए इस फिगर के अंदर, तो वी आर वर्किंग विद द टू एड ट्रायंगल। दिस इज द ट्रायंगल नंबर वन, जो कि स्टार्ट है ओ सी एंड ए। तो एक तो हमारे पास ट्रायंगल वो है जो ओ सी एंड ए पे डिपेंड करती है। तो ये हमारी पहली ट्रायंगल होगी। सो यू कैन टेक इट एज ट्रायंगल एंड वी हैव ओ सी ए, एंड we have another triangle, a triangle number two, that is the OCM. So this is the OCM triangle। ठीक है जी। तो हम इंटरेस्टेड सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल कौन सी है जी? OCM है, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस वाले से हमने इस ट्रायंगल को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखा जाए तो वी हैव ओ टू एम वैल्यू, we have C to M value, and we have O to C value here. So this is the perpendicular, this is hypotenuse, this is, you can say, OM is basically called base, and CM stand for the perpendicular. So according to the right angle triangle Pythagoras theorem, we can state here OC square is equal to OM square plus CM square G. After clearing this point here, we are able to further add the values of OM. As you can see here, OM side is actually equal to, you can say here, OA side plus AM side. So we have here a split of OM which can be taken as OA and AM। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने OM की वैल्यू को पुट करना है, जो कि OA प्लस AM के साथ लिखा जा सकता है, जैसा कि आपके पास यहाँ पे क्लियर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे OM की वैल्यू लिखी है, प्लस AM लिखा है, और ऑब्वियसली OM का स्क्वायर था, इसलिए OA प्लस AM होल स्क्वायर हो गया, प्लस CM का स्क्वायर वैसे का वैसे रह गया हमारे पास। ठीक है जी। ये हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर, यहाँ तक हम काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी। अगेन OA and AM is behaving as A plus B whole square. So suppose that this is the A here, this is the B here, or you have to expand the formula of A plus B square। तो आपके पास क्या जी OA square हो जाना है, जैसे आप लोग A plus B whole square पढ़ते थे, A square plus 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से ये टू वो वाला फार्मूला हो गया, ओ ए आ गया, ए एम आ गया, प्लस एम स्क्वायर हो गया, और ये वाला सी एम स्क्वायर वैसे का वैसे नीचे आ गया। यहाँ तक हमारे पास जो टोटल वैल्यू बनती है, ज़रा देखिएगा, ओ सी स्क्वायर वैसे का वैसा, ओ स्क्वायर भी वैसे के वैसा, टू ए एम आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। एंड प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है जी, ए एम स्क्वेयर और सी एम स्क्वेयर की बजाय यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी, ए सी स्क्वेयर लिखा हुआ है। तो ये ज़रा बात सोचने वाली है कि ये कैसे आ गया।
तो इट्स अ वेरी सिंपल वे। ये वाला जो AC स्क्वायर है, ये वाला हिस्सा है एक्चुअली दिस साइड। तो अगर आप सपोज करें तो हमारे पास एक और ट्रायंगल भी है जो हमने स्किप कर दी थी, दैट इज दी CMA ट्रायंगल। तो ये वाली जो ट्रायंगल है एक्चुअली इट इज कॉल्ड ACM ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू ACM ट्रायंगल, AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है जी? AC स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस फॉर दिस ट्राइंगल। ये परपेंडिकुलर है इसका, और ये इसका क्या है जी? हाइपोटेनस है। सो AC स्क्वायर और ये वाला सारा कुछ किसके बराबर होगा? AC के बराबर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस वी हैव CM स्क्वायर। सो ये हाइपोटेनस बनता है इसका, तो हमने इसको शॉर्टली AM स्क्वायर प्लस EM स्क्वायर को लिख दिया जी, AC स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। तो ये यहाँ से पॉइंट आता है। तो उस वाले से हमारे पास OC जो है वो इस फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। अगर आप गौर करें फर्दर जो है, अगर इन CAM या ACM ट्रायंगल, तो अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? आपने एक चीज फाइंड करनी है जो अभी तक हमें नहीं पता है, दैट इज दी AM वैल्यू। तो आपको AM की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे, तो हम AM की वैल्यू को कंप्यूट करना चाहते हैं, तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर लें। AM बेस है, हमें AC पता है क्योंकि वो Q है हमारे पास, तो इट इज कॉल्ड Q। तो उस हवाले से हमारे पास जो है AM ओवर AC इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये, और AM इज इक्वल टू AC कॉस थीटा हो जाएगा। OC स्क्वायर और ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, तो उस हवाले से OA जो है हमारे पास वो P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर के हवाले से है। ठीक है जी। सो इट इज कॉल्ड द P स्क्वायर, और OA एक्चुअली अगेन द P वेक्टर मैग्नीट्यूड AC इज बेसिकली ये AC, और ये किसके बराबर है जी? Q के बराबर है। ये इसके बराबर हो जाएगा, एंड अगेन AC इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो उस वाले से हमारे पास जी P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इस मैग्नीट्यूड के मुताबिक निकलती है। आप R रिजल्टेंट लें, उसका अंडर रूट लें, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका रिजल्टेंट बनता है। सो अगर आप गौर करें तो इस सारे के अंदर जो है हमने 3 स्टेप्स के ऊपर चीज़ों को सॉल्व करना है। एक पहली बड़ी ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद हमने एक स्मॉल इंडिविजुअल ट्रायंगल को सॉल्व करना है, जिसके आपके सामने जो है ACM ट्रायंगल को सॉल्व करके आप इस तक पहुंच सकते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो है दैट इज अनदर बिग इशू, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस हो रहा था। तो अगर आप गौर करें तो जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है इट्स एक्चुअली टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, और हम सपोज करें कि हमारा जो P है इज पैरेलल टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम जो है इसी ट्रायंगल को सपोज कर रहे हैं इन ट्रायंगल CAM, साइन थीटा एंड कॉस थीटा कंप्यूट किया जाएगा। साइन थीटा एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो यू हैव दिस परपेंडिकुलर CM परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस AC है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली PRP, एंड दिस इज hypotenuse, and this is the base here. So उस वाले से हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होगा, तो दैट इज साइन थीटा CM ओवर AC cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिक बेस ओवर हाइपोटेनस हो जाता है। सो द tan थीटा इज इक्वल टू बेसिकली द परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो CM ओवर AM। तो उस वाले से हमारे पास आ जाएगा। सो वी हैव हियर साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी वैल्यूज आ गई हमें। CM और AM की दोनों की वैल्यू पता चल चुकी हुई है। tan अल्फा है एक्चुअली, दिस इज द थीटा विच इज द एंगल बिटवीन द P एंड Q, बट this is the resultant angle and we are interested with this angle,
एंड ये जो एंगल होगा ये एक्चुअली तौर पे ये पी और क्यू के दरमियान बनेगा और ये अल्फा है अलहदा से। तो याद रखें tan अल्फा जो होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ ओसीएम ट्रायंगल से निकलेगा। तो ओसीएम ट्रायंगल को यूज करते हुए tan अल्फा आप निकाल सकते हैं सीएम ओवर ओएम। सीएम इज बेसिकली बिहेविंग एज, you can see here the CM is the basically the main triangle। OM बेस है, CM क्या है जी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वो बेस आ जाएगा। OM जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, OA प्लस AM, तो P प्लस यू कैन से AM, और AM जो है यू कैन से है AC cos थीटा। तो उस हवाले से tan अल्फा इज इक्वल टू P Q sin थीटा ओवर P प्लस Q cos थीटा। तो उस वाले से हमने ये डिस्कस किया था P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। तो अगर तो आपके पास दोनों P और Q के दरमियान जो एंगल है वो कौन सा बन रहा है जी 0 डिग्री बनता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव सिंपली हेयर addition and the resultant will also get the 0 डिग्री। तो आने वाला जो जवाब होगा वो भी 0 होगा। आपने जस्ट इस फार्मूलाज के अंदर cos थीटा पुट करना है 0 एंड द सेम आंसर दैट वी हैव जनरली विद द other vector resolutions or other vector calculus। Similarly, if P plus Q with the perpendicular Q, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा जी, तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा उसका एंगल होगा Q ओवर P। और ये आम वेक्टर की तरह इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो नॉर्मली तौर पे हम करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास तीसरा केस है, ये वो केस होगा जब P और Q आपस में क्या होंगे जी एंटी पैरेलल होंगे। तो ये वो वाला केस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि P और Q अगर एंटी पैरेलल है तो ऑब्वियसली इसका जो जवाब होगा ये रिप्रेजेंटेशन से ही जाहिर है। P जो है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और Q की मैग्नीट्यूड कम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा जी पॉजिटिव। अगर तो रिजल्टेंट पॉजिटिव है तो ओवरऑल इसकी मैग्नीट्यूड किधर होगी, अलोंग एक्स एक्सिस होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो उसका जवाब पॉजिटिव होगा। अगर ये आंसर पॉजिटिव हुआ तो वी विल हैव रिजल्टेंट 0 डिग्री। अगर Q की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और P की वैल्यू कम हो जाती है तो रिजल्टेंट किधर को होगा, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो वहाँ पे इसका जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूम के नेगेटिव तक जाएगा, तो इट विल बिकम 180 डिग्री। सो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द यूनिट वेक्टर बिकॉज रेजोल्यूशंस के बाद हम वेक्टर एडिशन के बाद हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जो वेक्टर है वो ए वन डायमेंशन की बजाय वो इट कैन बी इन मोर देन वन डायमेंशंस। सो द यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली वन एंड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है तो आपसे कोई कहे इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो वो यूनिट वेक्टर जो है वो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो कि बिल्कुल पैरेलल है किसके जी, अलोंग दी ए। ये अलोंग ए के पैरेलल है। और सिमिलरली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास ए के ऊपर हैट होता है। इट्स लाइक द बोथ डायमेंशन यूनिटी, इट्स प्रपोज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन स्पेस। सिमिलरली यूनिट वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट वेक्टर इंडिपेंडेंटली। ये भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास जो है वो मैनी डायरेक्शंस हो सकती हैं एंड कार्टेशियन यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो आमतौर पे 3 डायमेंशंस के अंदर होते हैं। एज यू कैन सी है आई हैव अ प्लेन फ्रॉम हियर, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसी तरह पॉजिटिव जी एक्सिस एंड नेगेटिव जी एक्सिस है। तो हमने आप समझ सकते हैं कि 3 प्लेन्स बनाई हैं, एक्स है, वाई है एंड दिस इज द बेसिकली द जी एक्सिस है। So this is x, this is y and this is the z। तो उस हवाले से हमारे पास जो है x, y और z है और उस हवाले से हमारे पास ये पॉजिटिव वाली साइड्स हैं और इसी तरह इनके नेगेटिव वाली साइड्स है, जैसा कि आपको ये फिगर दिखा सकती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 डायरेक्शन हो सकती हैं, ये माइनस एक्स की है, ये माइनस जी की है और ये जो है आपके पास माइनस वाई की है। तो एक्स को बेसिकली आई यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है
y को j यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और k को जी k यूनिट वेक्टर के साथ y z को k यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। The another part is very important, that's the resolution of vector। resolution of vector से मुराद होता है कि वेक्टर जो है उसको मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर सॉल्व करना और उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड द resolution of vector। It is a process of splitting the vector into two or more vector in such a way that either combined effect is same that of the given vector। For example, आपके पास एक वेक्टर a है, अगर आप उस वेक्टर a को along t डायरेक्शन एंड along n डायरेक्शन अलग-अलग से स्प्लिट कर सकते हैं, तो आप इसको कहेंगे कि आपने वेक्टर ए की रेज़ोल्यूशन कर दी अलोंग टी एंड अलोंग एन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। ये ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख भी सकते हैं। एक्स के हमने सपोज़ किया कि आपके पास एक वेक्टर ए है, जो कि इस हवाले से हमारे पास क्या है जी, रिप्रेजेंट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा के लिहाज से। तो इसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है अलोंग एक्स वेक्ट डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। और आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि एग्जैक्टली ए को दोबारा से रिट्रेस करवा सके, वो है जी अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो आप देख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस जो है हमने सेम एज इट इज़ इस वेक्टर को उठाया, हेड टू टेल रूल लगाया, पहले वेक्टर का हेड है, दूसरे वेक्टर का टेल है, तो y को यहाँ से डिस्प्लेस करके हम यहाँ पे ले आए हैं, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास ax और ay यहाँ पे बन गया। आपका पहला वेक्टर पहले की टेल है, दूसरे की हेड है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो a की फॉर्म में आ जाएगा। तो a कैन बी रिटन एज हियर, यू कैन सी हियर ax यूनिट वेक्टर प्लस ay यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह आपके पास इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड विद द ए वाई कंपोनेंट, तो आप इसका साइन कंपोनेंट निकाल सकते हैं। हियर इज द परपेंडिकुलर, हियर इज द बेस और हियर इज द हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जो है वो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय ए। तो आप रीअरेंज करके ए बाय ए साइन थीटा निकाल सकते हैं। अगर आप एक्स कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो आपके पास जी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए। तो वी हैव हियर ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा निकाला जा सकता है। सिमिलरली हम इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हवाले से वी हैव ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर कंपोनेंट, ये निकाला जा सकता है। वही पुराना स्कीम जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। मैं एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर एंड यू कैन यूज दिस मैग्नीट्यूड फार्मूला। एंड द फोर के एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द थीटा, देन tan इनवर्स इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स के हिसाब से हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। So in the upcoming lecture, we will discuss about the vectors in three dimensions: vector operations, scalar multiplication, vector triple products, and scalar triple products। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप लाजमी हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर पूछें। ज़ूम मीटिंग के अंदर आप चीज़ें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं एंड हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर भी चीज़ें पूछ सकते हैं।